Hello students, I hope I am visible to all of you and also audible to you. Are you getting my voice, everyone? आवाज सुनाई दे रही है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In the last class, we were studying the adjective. We have started studying adjective part of English grammar. I am GP Singh from Savant Coaching, and this is a free class for all the aspirants of various exams. Here we conduct classes for JEE, NEET, UPSC, and so many one-day exams like SSC, etc. This particular class, English, is useful for many of the examinations. In some exam, the English is qualifying nature. Some exam, it is also add up to the merit, its number. So this class is useful for so many examinations. And all of you should be attentive while attending this class. In last class, we have discussed various kinds of adjective, various degrees of adjective, like superlative and comparative degrees, etc. And we found that there are several ways to describe qualities of a noun or pronoun. What we have found that a word which is describe the quality of a noun or pronoun is called adjective. There are nothing much to know about the various theoretical aspects of adjective. It is very simple. So we will move on to take up the questions asked in previous year examinations. That's why the topic contains PYQ. PYQ stands for previous year's questions. Here we have a set of questions which are taken from the previous year question papers. This is from 2017 to 2022, almost 5 years. The last 5-year questions taken is useful because it shows the latest trend of questions asked in the various examinations. Right? I hope you understand. So now we will get the questions, and one by one we will try to solve all of them one by one. Right? The questions are
put here adjective विशेषण PYQ. These questions are arranged in this paper form, page form, and this page contains questions from upper to down portion. Some questions are in this side, some questions are in right hand side. What they are saying that find out which part of sentence has an error and select the appropriate option. If sentence is free from error, select no error. There are questions which contain error. We have to point out that part. And in some of the questions, fill in the blanks is also there. And in some of the questions, we may find replacement or proper substitution. Right? So let's start one by one. This questionnaire contains 90 questions, and we will solve few questions per day, some 10 or 20 or 30 or 25 like that. And within 3-4 days, slowly and gradually we will try to solve all the questions here so that you can have a better idea. And with the solving of questions, I will try to tell you few more things about the English grammar, whatever comes in the questions, and that will be also equally important for you, because I will try to tell other than that what is given in the question. That will be quite beneficial, quite helpful for all of you. So let's start. Sunita is feeling little uncomfortable today because she is ill and she can perform her work after having some rest for a while. ये क्या बोलता है कि सुनीता थोड़ी अनकंफर्टेबल मतलब बेचैनी महसूस होना, कंफर्टेबल मतलब चैन से रहना, अनकंफर्टेबल मतलब थोड़ी तबीयत खराब होने से मतलब है, यहाँ पे बेचैनी सा मतलब है. टुडे बिकॉज शी इज इल, क्योंकि वो बीमार है, सो शी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ व्हाइल. तो वो अपना काम कर सकती है, शी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ व्हाइल. तो ये कहने का मतलब है कि थोड़ा आराम करके फिर अपना काम कर लेगी. यहां पे जो एडजेक्टिव लगा हुआ है वो ये है लिटिल. लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे. तो ये क्या हो गया, यहां पे जो यूज आता है वो लिटिल का मतलब होता है कि बहुत ही कम, ना के बराबर. बहुत छोटा सा. तो लिटिल अनकंफर्टेबल मतलब जरा सा, बहुत ही जरा सा अनकंफर्टेबल है. यहीं पे अगर हम लगा देंगे अ लिटिल, मतलब ये होगा थोड़ा.
दोनों में फर्क है। लिटिल करेंगे तो एकदम जीरो हो जाएगा और अ लिटिल करेंगे तो थोड़ा थोड़ा बहुत। तो ये कहने का मतलब ये है कि अ लिटिल जो है, ये यहाँ पे लिटिल की जगह पे हम अ लिटिल लिखेंगे, ये वाला। तो इससे होगा कि थोड़ा बहुत उसको परेशानी सी महसूस हो रही है, इस वजह से वो आज काम नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आज काम करेगी। बहुत लिटिल कर देंगे तो एकदम फिर वो नगण्य हो जाएगा, जिसको नगण्य कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमको ये देखने को मिला, we found that this part of sentence is having error, so our answer will be A. Now let's move to the second number of question. Jaipur is further from Patna than Chandigarh. No error. तो फर्दर तो ऐसा नहीं होता है। फर्दर मतलब ये होता है आगे जाना, फार्दर मतलब होता है दूर। फर्दर मतलब आगे और फार्दर मतलब होता है दूर। जब हम एक ही रास्ते पे जाते हो, सपोज यहां से हम चले कहां के लिए, चेन्नई के लिए, रास्ते में पड़ गया विशाखापत्तनम। हम लखनऊ से चल रहे हैं चेन्नई के लिए, रास्ते में पड़ गया विशाखापत्तनम। तो इन दैट केस वी विल टेल दैट चेन्नई इज फर्दर फ्रॉम विशाखापत्तनम। यहां पे ऐसा नहीं है, जयपुर अलग दिशा में है, पटना चंडीगढ़ अलग दिशा में है और पटना अलग दिशा में है। तो यहां पे हम दोनों का डिस्टेंस जब कंपैरिजन करेंगे तो पटना से जयपुर दूर है चंडीगढ़ के मुकाबले। तो यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे फार्दर। सिंपली ए को यू से रिप्लेस करने से, यू को ए से रिप्लेस करने से इस सेंटेंस का पूरा मतलब बदल जाएगा। और इससे जो है वो सेंटेंस का करेक्शन भी हो जाएगा। तो यहां पे हम फर्दर की जगह पे फार्दर यूज करेंगे, लेकिन ये एरर करने को बताया है, इसलिए हम जो है ये बी पार्ट वाले को हम आंसर लिख के देंगे। करेक्ट। चलो, ये समझ में आ गया। यहां पे सी प्रिंट है, इसको हम बी कर लेंगे। ठीक है, और ये ही आंसर हमारा हो जाएगा। अब जो है थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। प्रभात इज इम्प्रेस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर। प्रभात जो है अपने छोटे भाई से बहुत खुश हैं, इम्प्रेस्ड हैं, बिकॉज ही इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। मतलब वो उनसे ज्यादा चतुर है और अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मतलब क्या होता है, खुश करने वाला। म्यूज इससे होता है ना म्यूज या म्यूजमेंट, ये सारे जो है एक ही रूट से बने हैं, म्यूज से, उसी से बना है म्यूजिक। जैसे हम कोई देखते ना म्यूजमेंट पार्क, जहां जाके आदमी खुश हो जाता है। ढेर सारे अम्यूजमेंट पार्क बने हुए हैं बड़े बड़े शहरों में, तो वो म्यूज से ही बना हुआ है। म्यूज मतलब प्रसन्न होना, और कहीं पे कोई ऐसी चीज हो जिससे कि आदमी जाके खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। म्यूजिक सुनने से भी आदमी
का दुख दर्द समाप्त हो जाता है और वो थोड़ा चीयरफुल फील करता है। तो अम्यूजिंग मतलब वो बहुत चीयरफुल है उनका छोटा भाई। तो यहां पे ये देखने की बात है कि जब प्रभात अपने आप को अपने छोटे भाई से, यंगर ब्रदर से कंपैरिजन कर रहा है और बोल रहा है क्लेवरर, तो जब क्लेवरर उसका गुण है और यहीं पे अम्यूजिंग है, तो यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए। तो अम्यूजिंग में ऐसा नहीं लगा सकते कि अम्यूजिंगर, ऐसे नहीं लगा सकते हम, है यहां पे हम मोर अम्यूजिंग का प्रयोग करेंगे। किसी को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग यूजेस होते हैं। तो यहां पे हम बोलेंगे मोर अम्यूजिंग। दैट्स व्हाई दिस sentence should have contained more before the word amusing, and therefore it is found that there is a error in the part C of the sentence. Therefore C should be our answer, है ना। अभी क्या करते हैं, चलते हैं फोर्थ पे। तो 1 2 3 हमने कर लिया, यहां पे हम 4 5 6 करेंगे। आई वुड रेदर टू डाई देन, रेदर टू डाई देन बेग। अच्छा, तो ये कहने का मतलब ये है, थोड़ा इसमें एरर है, लेकिन फिर भी हम सेंटेंस का, जैसे कोई बात गलत से बोली जाती है जो कि ग्रामेटिकली गलत होती है, हम भी कभी आपस में बोल देते हैं, सारे ही लोग कभी कभी तो गलती कर देते हैं बोलने में या लिखने में, लेकिन उसका मतलब, मंतव्य उसका प्रकट हो जाता है, इंटेंट जिसको कहते हैं ना, इंटेंट या इंटेंशन, या हिंदी में कहें तो मंतव्य, वो प्रकट हो जाता है। तो इसमें भी मतलब इसका प्रकट हो जा रहा है कि आई वुड, मैं भीख मांगने से मर जाना पसंद करूंगा। लेकिन यहां पे रैदर मतलब होता है किसी चीज का, जैसे बल्कि हम बोलते हैं, या किसी चीज को प्रेफर करने का, प्रेफरेंस, या पसंद, इस तरह की चीजों का जब आता है तो हम रेदर शब्द का प्रयोग करते हैं। आई वुड रेदर गो टू मार्केट देन सिट इन द रूम। ऐसा होता है कि मैं बाजार चला जाऊंगा, कमरे में नहीं बैठा रहूंगा। तो यहां पे ये बोल रहा है कि आई वुड रेदर डाई देन बेग। बट यहां पे एक चीज ये है कि रेदर के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। ये सेंटेंस में एक फॉल्ट है। तो ये यहां पे बी पार्ट जो है उसमें हमको, ये सब जगह सी दे रखा है, इसको बी होना चाहिए, है ना। ये हमको आंसर मिल गया है और इस पे हम टिक लगा देंगे बी करके, बी वाले पार्ट पे। हर जगह बी वाले में सी दे रखा है, सब में सी दे रखा है, सब प्रिंटिंग मिस्टेक कर रखा है ना। तो इस तरह से हमको ये समझ में आ गया। अच्छा, अब चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। रोशनी सेड दैट शी प्रेफर्स अ व्हाइट शर्ट देन कलर्ड वन इन फॉर्मल मीटिंग। रोशनी ने कहा कि वो फॉर्मल मीटिंग में सफेद शर्ट
पहनेगी देन कलर्ड वन। हाँ, तो इसमें क्या है कि जब दो चीजों का प्रयोग होगा इस तरह से, तो हम दो चीजें जब कंपैरिजन कर रहे हैं। अब कंपैरिजन में दो प्रकार का कंपैरिजन होता है। एक तो जो वर्ब वाला कंपैरिजन होता है कि जिसमें कि हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, ER, EST या मोर, मोस्ट, इस तरह से लगाते हैं। एक कंपैरिजन होता है, दो अलग अलग चीजों को कंपैरिजन करते हैं, व्हाइट शर्ट और कलर्ड वन, है ना। तो वहां पे हम दो चीजें लगा सकते हैं दोनों के बीच में। एक होता है देन, दूसरा होता है टू। हाँ, तो यहां पे अगर हम देन की जगह पे टू का प्रयोग लगाएं, मतलब मंतव्य और इंटेंट वगैरह तो क्लियर हो जा रहा है। लेकिन यूजेस में जो आएगा वो ये है कि अगर हम देन की जगह पे टू लगाएं तो ये हमारा ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, उचित रहेगा। इसलिए इसको हम इस वाले पार्ट में हम बताएंगे कि यहां पे थोड़ा सा एरर है, बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए बी पार्ट हमारा ठीक होगा। सही है। रोशनी सेड दैट शी प्रेफर, और ऐसे केसेस में हमेशा टू करते हैं। आई वुड रेदर प्रेफर राइस टू चपातीस फॉर द डिनर, है ना। चपाती के तुलना में मैं राइस को ज्यादा पसंद करता हूं, उसको जो है प्रधानता दूंगा डिनर में, ठीक है, या देता हूं। इस प्रकार से ये हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस तरह से अब हम छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अभी देखते हैं कि क्या आ रहा है। छठा क्वेश्चन क्या है? एवरीबडी knows that Bhutan is the most peaceful of all other countries in the world. यहां पे जो प्रयोग है वो सेंटेंस का मतलब तो क्लियर है कि सब लोग जानते हैं कि भूटान जो है बहुत ही शांतिपूर्ण देश है अन्य सभी देशों के तुलना में। तो ये देखते हैं कि यहां पे क्या हो सकता है। जब सुपरलेटिव डिग्री की बात चल रही है, भूटान इज द मोस्ट पीसफुल, है ना, तो उस समय हम कंपैरिजन के लिए अदर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल कंट्रीज हो गया। ऑल अदर कंट्रीज करेंगे तो फिर वो कंपैरेटिव डिग्री हो गया, है ना। तो इस वजह से यहां अदर का प्रयोग कुछ जरूरत से ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि हम इसकी जगह कुछ और प्रयोग करेंगे, बस इसको हम हटा देंगे। पीसफुल ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सभी देशों में भूटान सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण देश है। यहां पे हम सी को आंसर कर देंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। अब हम देखते हैं 7, 8 और 9। मेरे ख्याल से आप लोगों को दिखलाई दे रहा होगा 7, 8, 9, 10 यहाँ पे है। इसको देखते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं और क्या क्या नया सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक ना। इसमें देखिए क्या हो रहा है। पीछे एक क्वेश्चन हम कराए हैं
जिसमें कि व्हाइट शर्ट और कलरफुल शर्ट का है। तो जब प्रेफर का प्रयोग किया जाता है तो उसमें देन का प्रयोग की बजाय हम टू का प्रयोग करते हैं। ये पीछे हम लोग देख चुके हैं। तो ऑन संडेज आई प्रेफर रीडिंग टू गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड। दो क्रियाओं का जब तुलना करते हैं, एक पसंद हम ज्यादा करते हैं तो वहां पे टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने अभी पीछे देखा कि व्हाइट शर्ट को कलर्ड शर्ट के मुकाबले ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया, तो वहां पे देन की जगह टू किया गया था। सेम सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये देन की जगह पे टू हो जाएगा। देखो यहाँ फिर बी किया था, यहाँ फिर बी किया। और हमारा आंसर क्या होगा? हमारे आंसर में ये है कि सी पार्ट में हमको एरर है और वहां पे टू का प्रयोग होना चाहिए, ठीक ना। Now let's move on to the next question, which is 8. Little knowledge of playing volleyball that she possessed provided to be helpful at the time of inaugural match. Provided to be helpful. यहाँ पे बहुत अलग सा ये क्वेश्चन है जिसमें कि हम करते हैं ये कि, अच्छा क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं पहले। थोड़ा वॉलीबॉल का थोड़ा सा ज्ञान खेलने का, दैट शी पोजेस्ड। कोई महिला थी, कोई लड़की थी, उसको थोड़ा बहुत वॉलीबॉल खेलने को आता था। इनॉग्रल मैच, शुरुआती मैच जो है उसमें वो थोड़ा सा ज्ञान बहुत हेल्पफुल हो गया, ठीक है, हो गया हेल्पफुल। यहां पे फिर वही बात है, लिटिल नॉलेज मतलब नगण्य। तो ऑल लिटिल नॉलेज या द लिटिल नॉलेज यहां पे होगा ना, तो चूंकि वो नॉलेज की बात हो रही है जो कि हमारा एक सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो वहां पे ये द लिटिल नॉलेज हम करेंगे तब ठीक रहेगा, तब वो नगण्य नहीं होगा। हाँ, ये हो जाएगा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ठीक है। इसी के साथ ही हम इस पे ए वाले पे टिक कर देंगे तो हमारा आंसर सही सही हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। राम इज सुपीरियर देन श्याम इन हिज विजन ऑफ करप्शन फ्री इंडिया, है ना। तो 9वें में क्या बोलता है? फिर वही बात की देन और टू की बात जब हम करेंगे कि राम जो है करप्शन फ्री इंडिया के बारे में जो उसके विचार हैं, विजन में यहाँ पे विचार का प्रयोग हम करें तो ज्यादा ठीक होगा। तो यहाँ पे जब सुपीरियर दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे फिर वही आ जाएगा कि देन की जगह पे हम टू प्रयोग कर दें तो वो ज्यादा सही हो जाएगा और ग्रामेटिकली सही हो जाएगा। मंतव्य तो इससे भी प्रकट हो रहा है, इसलिए हम ए को आंसर मान के और फिर हम ए को टिक कर देंगे। और जब अगर कभी रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन की बात आई तो यहाँ पे देन को हम टू से रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि कंपैरेटिव डिग्री में हम ज्यादातर टू का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। देन भी प्रयोग ठीक है लेकिन दिस वन इज बेटर।
अब क्या होगा, अब हम चलेंगे इस पे 10वें क्वेश्चन पे। एक मिनट रुकिए। सो यहां पे द प्रीस्ट क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चुअल नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम टू इट्स ओन एडवांटेज। ये बहुत समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये क्लास के बारे में बात किया जा रहा है। ये बहुत कुछ फिलोसफिकल बातें हैं। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, ठीक है। तो प्रीस्ट क्लास की बात हो रही है कि उसने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया स्क्रिप्चुअल नॉलेज और इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम टू इट्स ओन एडवांटेज। अपने स्वार्थ के लिए उसका विवरण बताता गया स्क्रिप्चुअल नॉलेज का, और उस पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो ये द प्रीस्ट क्लास की जगह पे क्या है कि क्लास ने जो है, जो वर्ग जो है, जो प्रीस्ट लोगों का वर्ग है, उसने क्या किया कि एकाधिकार जमा लिया अपना स्क्रिप्चुअल नॉलेज, और उसका विवरण, उसका जो भी मतलब बताता रहा, मंतव्य बताता रहा, उसका जो उपदेश देके उसका जो अर्थ बताता रहा, जो स्क्रिप्ट में नॉलेज लिखा हुआ था, जो किताबों में नॉलेज दिया हुआ था, उसका पूरा जो मतलब बताता रहा उपदेश देके, उस पे उसने एकाधिकार कर लिया। तो प्रीस्ट क्लास कौन सा हुआ? जो प्रीस्ट लोग हुआ करते थे। तो यहाँ पे केवल ये देख लें, वर्ग की बात हो रही है, यहाँ पे वो क्लास की बात नहीं हो रही है। जो क्लास में जो पढ़ाने वाला, क्लास कक्षा जिसको कहते हैं, यहाँ पे प्रीस्ट क्लास। तो प्रीस्ट क्लास की जगह पे अगर हम एक वर्ग है उसको अगर हम ये कर दें PRIEST, प्रीस्टली क्लास कर दें, तो ये मतलब हो जाएगा कि वो जो प्रीस्ट लोग हुआ करते थे उनका क्लास, जो क्या बोले उनको, जो प्रीस्ट मतलब साधु सन्यासी टाइप के जो लोग हो गए, उनका जो वर्ग हो गया। तो ये एक एडजेक्टिव के रूप में यहां पे आ गया प्रीस्टली क्लास, ठीक है। और इस तरह से यहां पे केवल इसमें हम LY लगा देंगे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा और इस क्लास का विशेषता बताता रहेगा। और यहां पे फिर हम ए पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं, 10 क्वेश्चन हमने कर लिया। तो 11, 12, 13 पे चलते हैं हम। Hope you are finding this class some having some substance and interest of yours. अभी कहाँ चला गया 13? केवल अभी तो इसमें 11, 12 है। Together with empowerment, there has to be a culture of personal accountability, so that everyone realize the necessity of valuing commitment. बड़ा भारी भारी सेंटेंस दे दिया है।
अच्छा, नाउन जब भी होगा उसके साथ कोई एडजेक्टिव लगा होगा तो मोस्टली वही क्वेश्चंस इस वाले क्वेश्चनायर में आए हुए हैं। तो जहां भी नाउन होगा उसके पहले कुछ लगा होगा तो उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे तो हमको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। टुगेदर विद एम्पावरमेंट देयर हैज टू बी अ कल्चर ऑफ पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। हमने अगर किसी को पावर दे दिया तो व्यक्तिगत रूप से जवाबदेही भी होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या हो गया? जवाबदेही, ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से जो जवाबदेही हो तभी जाके हर आदमी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको महसूस करेगा। यहां पे पर्सनली अकाउंटेबिलिटी के बजाय अगर पर्सनल अकाउंटेबिलिटी करें तो ये जो एडजेक्टिव है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी एक नाउन है, उसके पहले जो लगा हुआ है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, वो बेहतर होगा। पर्सनली अकाउंटेबिलिटी का मतलब नहीं होता है, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी होती है जब हम ये लगाएंगे। पर्सनली भी वर्ड होता है लेकिन वो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है, यहाँ पे पर्सनल होना चाहिए। therefore we could find that there lies an error in the B part of this sentence। है सही है। अब हम 12 नंबर को देखते हैं। Much believe that if you are modern you should not be religious and vice versa, can't to coexist। बड़े हैवी सेंटेंस दे रखे हैं जो है। मंतव्य, इसमें कुछ गड़बड़ी तो है, गड़बड़ी फाइंड करते हैं, खोजते हैं गड़बड़ी को, लेकिन इसका मंतव्य प्रकट हो जा रहा है। मतलब बहुत लोग ये विश्वास करते हैं कि अगर आप मॉडर्न हैं तो आपको धार्मिक नहीं होना चाहिए, एंड वाइसी वर्सा, मतलब अगर आप धार्मिक है तो मॉडर्न नहीं होना चाहिए। ये पूछ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्निटी क्या साथ साथ नहीं रह सकते हैं? को एग्जिस्ट मतलब कि सह अस्तित्व, सह अस्तित्व साथ साथ क्या नहीं रह सकते हैं? बहुत हैवी सेंटेंस दे रखा है। अच्छा, मच बिलीव की जगह पे यहाँ पे मच मतलब तो ज्यादा होता है, अनकाउंटेबल है, लेकिन जब मेनी का प्रयोग आ जाएगा तो वो व्यक्तियों के लिए हो जाएगा कि मेनी बिलीव, बहुत लोग विश्वास करते हैं। मच मतलब नहीं होगा, मच मतलब तो ज्यादा होता है, ज्यादा मेनी में मतलब ज्यादा होता है, लेकिन मेनी यहाँ पे प्रयोग करते हैं किसी व्यक्तियों का जब हो बोध होता है, काउंटेबल नाउन में बोध होता है, और लोग हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। और जहां मच का प्रयोग होगा वहां पे हम काउंटेबल का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब जहां काउंटेबल नहीं होता है, अनकाउंटेबल होता है, वहां पे हम मच का प्रयोग करते हैं। मच वाटर या मच रेन, इस प्रकार से चीजें आती हैं। तो यहाँ पे मेनी का प्रयोग हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से हमको 12 क्वेश्चन हमने किए। 13वें का अच्छा इसमें ही दे रखा है, ABCD बना रखा है। चलो देखते हैं क्या है इसमें। ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द more essential virtues for real inner prosperity and happiness because it can connect us to divine। बहुत हैवी सेंटेंस कर रखा है। ग्रेटिट्यूड का हिंदी में क्या मतलब हो गया?
है ना। ग्रेटिट्यूड का मतलब हो गया कृतज्ञता। हम अपनी कृतज्ञता का प्रयोग करें, कहीं से भी कुछ लें हम, तो उसके प्रति हम कृतज्ञ रहें, उसके योगदान को महसूस करें और समय आने पे उसको योगदान देने वाले के समक्ष प्रकट करें। तो यही होती है कृतज्ञता। तो कृतज्ञता इसेंशियल वर्चूज, इसेंशियल मतलब मौलिक या बहुत ही आवश्यक, वर्चूज मतलब गुण, यहां पे प्लूरल है, ऑफ रियल इनर प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। प्रॉस्पेरिटी मतलब ये होता है कि बहुत साधारण शब्दों में तो कहें कि बहुत धनी जिसको बोलते हैं या साधन संपन्न जिसको बोलते हैं वो होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का प्रयोग अगर हम करते रहें, जिससे भी कुछ लें या जिससे भी कुछ प्राप्त करें उसको हम धन्यवाद ज्ञापित करते रहें, उसको जो है हम मन में लेके और उसके प्रति आदर की भावना रखें, तो ये जो है आंतरिक खुशी और आंतरिक परिपूर्णता के लिए बहुत ही आवश्यक गुण है, जिससे कि हम सीधे सीधे ईश्वर से संबंध बना सकते हैं। ये कहने का इस सेंटेंस का पूरा मतलब है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि जो हमारा एडजेक्टिव आया है इस पूरे सेंटेंस में, एक है मोर, इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल वर्चूज होना चाहिए, क्योंकि मोर तो ये हो गया कि जब दो चीजों को कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब ग्रेटिट्यूड के बारे में बता रहे हैं कि वो तो सबसे बड़ा गुण होता है, तो यहाँ पे हमको मोस्ट का प्रयोग यदि हम करेंगे तो वो जो है सही होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, राइट। अब हम चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चौदह नंबर का क्वेश्चन ये है, बहुत कठिन सेंटेंस बना रखा है। The aroma of inaugurate morning cup of tea comes wafting up the stairway, and soon I am sipping it slowly and reverentially without rushing. Aroma मतलब हो गया सुगंध, गंध, सुगंध, अच्छी वाली सुगंध। तो कहते हैं कि मॉर्निंग कप ऑफ टी बन रहा होगा कहीं पे और हम सो रहे होंगे कहीं पे, वैफ्टिंग अप द स्टेयरवे, उसकी गंध छत पर सीढ़ियों से रास्ते हमारे पास आ गई और जल्दी ही मैं उसको धीरे धीरे और एकदम रेवरेंशियली, मतलब कि बहुत ही संतुष्टिपूर्ण ढंग से मैं उसको सिपिंग करने लगा, विदाउट रशिंग, बिना किसी हड़बड़ी के। विदाउट रशिंग मतलब बिना किसी हड़बड़ी के, आराम से संतोष पूर्वक उसको धीरे धीरे मैं उसको सिप करने लगा, है ना। अभी ये क्या है, मॉर्निंग कप ऑफ टी, ये एक नाउन का फ्रेज है। तो इसके साथ जो एरोमा ऑफ इनविगोरेट, इनविगोरेट भी वर्ड है, लेकिन यहां पे ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो ये इनविगोरेटिंग होगा,
विगो रेटिंग का प्रयोग होगा। इन्विगोरेट मतलब एक क्रिया हो गई। अब इन्विगोरेटिंग जब कर लेंगे तो वो एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा। तो इन्विगोरेटिंग मॉर्निंग कप ऑफ टी यहां पे यूज होगा, ठीक ना। अब इसी तरह से हम 15वें के देखते हैं। इनॉर्मस डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें एक एडजेक्टिव है मोर। ज्यादा स्पष्ट फीचर की जगह पे यहां पे मोर की जगह पे हम मोस्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्योंकि मोर ऑब्वियस फीचर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड इज इनॉर्मस डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें ये कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा स्पष्ट फीचर है वो ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड का कि बहुत विशाल रूप से इनॉर्मस डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हुआ है। तो मोस्ट ऑब्वियस इसको जब बोलते हैं, जब भी हम प्रयोग करते हैं तो मोस्ट ऑब्वियस फीचर का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने 15 क्वेश्चंस किए और इसके बाद आप लोग इसको देखिएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत गड़बड़ी होगी तो उसको आप हमको बताएंगे और हम फिर से दोबारा से इस पे चर्चा करने के लिए फिर से तैयार रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही आज की क्लास जो है वो समाप्त की जा रही है। और फिर कल आगे का हम लोग PYQ करने का प्रयास करेंगे। कल इसी टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।